students, you must have heard that Reliance Industries Limited has announced for rights issue of more than rupees 53,000 crores. This will be the biggest ever rights issue by any Indian company. Actually students, Reliance Industries Limited is going to offer rights issue to its existing shareholders at rupees 1,257 per share. That means the securities of Reliance Industries Limited, which are currently listed with a market value of rupees 1,467 rupees per share, will be offered to existing shareholders at the rate of rupees 1,257 per share only. That means there is a direct discount of 14% or a discount of rupees 210 per share. Shareholders can subscribe to one equity share for every 15 equity shares held by them as on record date. इसको सरल भाषा में समझिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो भी सिक्योरिटीज आज के डेट में है, यानी लगभग 1 मई को जो सिक्योरिटीज मार्केट वैल्यू जिनकी रुपीज 1,467 रुपीज है, उनको वो अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक सिक्योरिटी रुपीज 1,257 के हिसाब से देगी, यानी सीधा 14% डिस्काउंट दे रही है, या दूसरे भाषा में हर शेयर पे 210 रुपए का फायदा होगा अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट्स इशू करता है तो। अब हमें ये देखना होगा कि किस टाइप की कंपनीज राइट्स इशू करती हैं, राइट्स इशू के बारे में सेबी की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, कौन कौन सी कंपनीज नहीं कर पाती हैं, राइट्स इशू को खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, और इसके संबंध में प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के तहत कोई कंपनी राइट्स इशू करती है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग सेबी गाइडलाइंस फॉर राइट्स इशू एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट in 4 important parts. That is, part number 1, what are the different kinds of issues through which company may generate fresh capital from the market? Number 2, what is the meaning of rights issue? Number 3, what are the important SEBI guidelines for making rights issue? And in the last segment, that is 4th part, we will discuss regarding what are the basic objectives for companies making issues or rights issues. बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्या, क्यों कोई कंपनी राइट्स इशू करती है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। नाउ द फर्स्ट पार्ट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इशूज। वी कैन से दैट देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इशूज, दैट इज नंबर 1 पब्लिक इशू, नंबर 2 राइट्स इशू, नंबर 3 प्राइवेट प्लेसमेंट एंड नंबर 4 वन इज बोनस इशूज। आइए देखते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट, पब्लिक इशूज। Public issues are basically those issues which are offered by the company directly to the general public with the help of prospectus। यानी पब्लिक इशू वह इशू है जो कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस के माध्यम से सीधी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है फॉर द पर्पज ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स। दैट इज रिगार्डेड एज पब्लिक इशूज। नंबर 2, राइट्स इशू। स्टूडेंट्स, इसे तो हमें डिस्कस डिटेल में करना है, तो इसे बाद में पढ़ते हैं। Point number 3rd or third issue, that is private placements. Private placements are basically those issues which are offered by the company directly to a list of sophisticated investors. Now, here 2 things must be understood. Number 1, no advertisements are made when a company decide to make private placements. उसमें advertisements नहीं किया जाता है. And number 2, the number of investors should be either 50 or less than 50. If the number of investors in private placement is more than 50, then it will be regarded as a case of public issue. तो private placements में basically company a list of sophisticated investors को directly invite करती है कि आइए और हमारे shares को subscribe करिए, जिनकी संख्या 50 या उससे कम होती है, और इसमें कोई advertisements नहीं किया जाता है। And the 4th issue is bonus issues or bonus shares. Bonus shares are basically those shares which are distributed by the company directly to their existing shareholders. Actually, students, bonus shares are that part of profit which are directly distributed by the company
टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये कैश के फॉर्म में नहीं, शेयर के फॉर्म में। प्रॉफिट का वह हिस्सा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स के फॉर्म में दिया जाता है, दैट इज रिगार्डेड एज बोनस शेयर्स। बट सिंस बोनस शेयर्स do not bring fresh capital in the company, so this method is eliminated। क्योंकि बोनस इशूज कोई फ्रेश कैपिटल कंपनी में लेके नहीं आता है, इसलिए इस मेथड को हम लोग नहीं मानते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट देयर आर एक्चुअली 3 types of issues for generating fresh capital from the market, and that is number 1 public issues, number 2 rights issues, and number 3 is private placements। Now students, the third part, that is what are the SEBI guidelines regarding rights issues। आइए एक एक करके हम लोग गाइडलाइंस को देखते हैं। पहला गाइडलाइन, एप्लीकेबिलिटी, यानी ये किन किन कंपनीज के ऊपर लागू होंगी। स्टूडेंट्स, these guidelines or SEBI guidelines for rights issues, they are applicable upon those companies which fulfills 2 conditions। ये गाइडलाइंस उन्हीं कंपनियों के ऊपर लागू होती हैं जो 2 कंडीशंस को फुलफिल करें। 2 कंडीशंस क्या क्या है? नंबर 1, द इक्विटीज ऑफ द कंपनी मस्ट बी लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंजेस। वो इक्विटी जिसकी राइट्स इशू ला रही है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होनी चाहिए। और दूसरी, द साइज ऑफ इशू शुड बी मोर देन ₹50 लाख। जो इशू का साइज होना चाहिए वो 50 लाख या उससे ज्यादा का ही होना चाहिए। सो दीज आर 2 कंडीशंस which must be fulfilled by the companies, then only the SEBI guidelines for rights issue will be applicable upon those companies। Now the second guideline is regarding partly paid shares। कई शेयर्स होते हैं जो partly paid होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग क्या कहता है गाइडलाइंस, आइए इसे देखते हैं। If the company has partly paid shares, then condition number A, all shares must be made fully paid up within a period of 12 months। कंपनी को शेयर होल्डर्स को मौका देना चाहिए 12 महीने का, ताकि उन 12 महीने में वो अपने शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर लें। अदरवाइज द कंपनी विल फॉरफिट दोज शेयर्स। तो कंपनी अगर वो 12 महीनों में नहीं फुल्ली पेड अप करते हैं तो कंपनी उनकी शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। एक यहाँ पे एक्सक्यूज दिया गया है या एग्जेम्पशन दिया गया है, if issue size is more than ₹500 crore, then there is no need to make the issues fully paid up। पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इशू की साइज ₹500 करोड़ से ज्यादा है। स्टूडेंट्स, इस केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम लोग देख रहे हैं इसकी इशू साइज इट इज मोर देन 53,000 करोड़। That's why this condition will be not applicable upon Reliance Industries। Now, guideline number 3, underwriters। Now, appointment of underwriter is optional। That means the company may appoint a underwriter, it may not appoint a underwriter। Now, guideline number 4, withdrawal of a right issue। क्या कोई अनाउंसमेंट के बाद भी विड्रॉ कर सकता है इस इशू को? उसके रिगार्डिंग से भी गाइडलाइन क्या कहती है? स्टूडेंट्स, as per the SEBI guidelines, once announced, the rights issue cannot be withdrawn। If they are withdrawn after announcement, then no security of the company will be allowed for listing upon the stock exchange for the next 12 months। यानी एक बार अनाउंसमेंट कर दिए तो फिर आपको इशू करना होगा। अगर कोई कंपनी आफ्टर अनाउंसमेंट विड्रॉल करती है राइट्स इशू की, तो उसकी किसी भी सिक्योरिटी को उस स्टॉक मार्केट में 12 महीनों तक, अगले 12 महीनों तक लिस्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन, गाइडलाइन नंबर 5, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार टू एन इशू। स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार टू एन इशू इज कंपल्सरी। दैट मीन्स एवरी कंपनी हैज टू अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू एन इशू टू लुक आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शंस। नाउ नेक्स्ट गाइडलाइन इज रिगार्डिंग मर्चेंट बैंकर्स। Students, it is mandatory for every company to appoint a category 1 merchant banker for looking after the whole process। Also, the drafting of offer document shall be done by the merchant banker, plus it shall be the responsibility of the merchant banker to note that all the material facts must have been disclosed in the offer document। Also,
द ऑफर डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल्ड विथ सेबी एट लीस्ट 21 days बिफोर इट इज फाइल्ड विथ स्टॉक एक्सचेंज। यानी मर्चेंट बैंकर्स की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, प्लस कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर ही होना चाहिए। ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट मर्चेंट बैंकर ही करेगा कंपनी की सहायता से। सारी मटेरियल फैक्ट्स को या कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को उसमें डिस्क्लोज करेगा और सेबी के साथ कम से कम 21 दिन पहले वो ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल कर देगा। 21 दिन किस दिन से पहले? जिस दिन स्टॉक मार्केट के साथ लिस्टिंग हो रही है या स्टॉक मार्केट के पास ऑफर डॉक्यूमेंट जा रहा है, उस दिन से 21 दिन पहले यह सेबी के पास होना चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट। अगला गाइडलाइन नंबर 7, एग्रीमेंट विथ डिपॉजिटरी। Students, it is compulsory for every company to make an agreement with either NSDL or CDSL before making a rights issue. Guideline number 8, period of offer. As per the SEBI guidelines, the period of offer should be between 30 to 60 days. That means the offer period for rights issue should not be less than 30 days and it should not be more than 60 days. यानी कोई भी वैसा दिन होना चाहिए ऑफर का जो 30 से 60 दिनों के बीच का दिन हो। कोई भी दिन 30 से ज्यादा हो और 60 से कम दिनों का हो। गाइडलाइन नंबर 9 इज रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, हियर देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दैट इज पॉइंट नंबर ए, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 90%, यानी 90% या उससे कम हुआ तो पूरी की पूरी ऑफर को वो लोग वॉइड कर देंगे, सेबी उसको नहीं मानेगी। कंडीशन नंबर बी, द टोटल इशूज मस्ट बी मेंशन्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। कितनी राइट्स इशू कर रहे हैं उसे आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना होगा। एंड पॉइंट नंबर सी, इफ 90% इज नॉट सब्सक्राइब्ड देन द एंटायर अमाउंट शुड बी रिफंडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 42 days। अगर 90% सब्सक्राइब्ड नहीं होता है तो सारे के सारे जितने लोगों ने भी आपके पास सब्सक्राइब किया था उनका पैसा आपको 42 दिनों के अंदर अंदर वापस करना होगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, दैट इज गाइडलाइन नंबर 10, इज रिगार्डिंग प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ राइट्स इशू। जब राइट्स इशू की हम लोग बात करते हैं तो यहां प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होता है, बट प्रोमोटर्स आर परमिटेड टू परचेस द अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। अगर कोई सब शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड है तो उसे प्रोमोटर्स खरीद सकते हैं। दैट मीन्स द प्रोमोटर्स मे गारंटी रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ एन इशू। जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आप लोग देखेंगे कि उनके प्रोमोटर्स ने पूरा गारंटी किया हुआ है कि जो भी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स होंगे वो सारे के सारे प्रोमोटर्स के द्वारा खरीद लिए जाएंगे। दैट मीन्स द प्रोमोटर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैव ऑलरेडी guaranteed regarding the success of an issue. Now students, the last segment, that is 4th segment of this particular topic, that is the 4th segment is regarding objectives behind making rights issue. कोई कंपनी अगर इशू करती है राइट्स इशू तो उसे क्या फायदा है? क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो फायदा है, सीधा सीधा दिखता है, उन्हें कम दामों पे सिक्योरिटीज मिल जा रही है। लेकिन कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? कंपनी क्यों करती है? बेसिकली देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स, बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आर, नंबर 1, द कंपनी एक्चुअली वांटेड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इस सिक्योरिटी को इशू करके या कम दामों पे इशू करके वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस जीतना चाहती है कंपनी। नंबर 2, द कंपनी वांट टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। वो केवल कंपनी के शेयर होल्डर्स का ही नहीं कॉन्फिडेंस जीतती है, ऐसा करके वह मार्केट का भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस जीतती है। मार्केट में के पार्टिसिपेंट्स को यह मैसेज जाता है कि इस कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ अच्छा किया, कम दामों पे शेयर्स इशू किया और उन्हें फायदा दिया। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स। ऐसा करती है तो नए इन्वेस्टर्स भी उसकी तरफ और आकर्षित होते हैं, ये भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। चौथा पॉइंट, टू रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द मार्केट विथ मिनिमम रिस्क प्लस लेस एक्सपेंस। जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा कि पब्लिक इशू में एडवर्टीजमेंट्स करना होता है, काफी दिन का इंतजार करना होता है,
वो सब यहाँ नहीं करना है, वहां बहुत प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो पब्लिक इशू की तरह इसमें बहुत खर्चे नहीं है, तो कम खर्चे पे किया जाता है, प्लस रिस्क बहुत मिनिमम। क्यों? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही आप दे रहे हैं और एक तरीके से 100% गारंटी है रिगार्डिंग सक्सेस इशू। तो इस कारण से भी कंपनी जो है फ्रेश कैपिटल जनरेट करने के लिए राइट्स इशू करती है। एंड लास्ट पॉइंट, फॉर रीपेइंग इट्स डेट्स। कई कंपनी इसे इशू करती हैं ताकि जो पैसा कलेक्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ राइट्स इशू, दैट मनी मे बी यूज्ड टू राइट ऑफ द डेप्ट ऑफ द कंपनी। जैसा कि इसमें भी हम लोगों ने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बेसिकली यही मैसेज दे रही है दैट विद द हेल्प ऑफ ₹53,000 करोड़ और मोर इट विल राइट ऑफ इट्स डेप्ट। वो अपनी ऑब्लिगेशंस को ही खत्म करेंगी। और ऐसा रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि बाई मार्च 2021 यानी अगले साल के मार्च तक वो डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगी, उसके ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं रहेगा। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज to repay its debt. So students, this was all about SEBI guidelines regarding rights issues. आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।